Hello everyone. Well, this is a long time now, and after a lot of time, I'm uploading a video on this YouTube channel. और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं. बेसिकली मेन रीज़न तो यही है कि जब एग्ज़ाम ही नहीं निकला तो फिर मैं आप लोगों से क्या बात करूं एंड व्हाट शुड आई से नेक्स्ट. तो वो वाली चीज़ें फिर चल रही होती हैं. एंड द 2024 एग्ज़ाम बिफोर विच आई हैड अपलोडेड द वीडियो, I did not clear that exam, and in 2025 again I did not clear the prelims itself. But there's one thing to tell you all, and through my experiences what I've been facing, और maybe न्यू जो एस्पिरेंट्स हैं उनको इस चीज़ से थोड़ा हेल्प मिले, और मैं जो अपनी गलतियाँ समझ पाया हूँ शायद वो आपके किसी काम आ जाएं. एंड आई वुड वांट यू कि आप लोग ये जो वीडियो है यू प्ले दिस ऑन 1.5x so that it would be easy for you to cover the complete video. So in this video I'll basically talk about my CSET exam, because 2024 maybe it was my first attempt, और then 2025 में भी जब मैंने प्रीलिम्स दिया it was my second attempt, और दोनों ही अटैम्प्ट्स में मेरा जो CSET है वो हमेशा काफ़ी अच्छा रहा दोनों ही अटैम्प्ट्स में. And what was the reason that I was clearing the CSET but not getting good marks in GS? I'll discuss about the CSET part. For GS, why I was not scoring good marks, I will try to cover that in another video. So let's come to CSET. I'll tell you my background. Till 10 I had maths, and I was never a good student in maths. I scored 76 out of 100 in 10th boards exam. It was 74 out of 100 in 10th boards exam. And after that also, in 11th and 12th I never had maths. I was a biology student. I had science, so I never had a good maths background, but still scoring 87 marks in CSET. I know it's not too much, but it's much more than the cutoff. Like cutoff is fixed, it is 66, and coming to 86, it is very difficult these days. Like people are not even scoring 66, and this is what is getting them out of the exam circle. I don't know why I'm not clearing the GS. There are a few things that I will work upon, but I'll tell you how I got this far in the CSET test. So the first thing that I had in my mind when I went for the exam, I'm discussing the exam part first, then I'll come to the preparation part. So I had this strategy that I will complete the this comprehension part in 30 minutes. Like this can be different for everyone, बट मेरा जो था मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ. मैंने ये प्लान किया था कि मैं 30 मिनट्स में जो मेरा कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है उसको मैं कंप्लीट कर लूँगा. लाइक वट एवर क्वेश्चन आई वुड बी एबल टू डू इट इन द एग्जाम. लाइक दिस 2025 exam we had 29 questions from the comprehension part. In 2024 exams also we had 27 questions from the comprehension part, और 27-29 questions are too much. Like अगर आप वही सारे सही करते तो you will clear the CSET part itself. So I had completed in 30 minutes in both these years. I completed the comprehension in 30 minutes, and then I had 1.5 hours spared for the mathematics part, maths and reasoning part. And in this part, whatever I was able to complete, whatever I was able to comprehend, whatever I was able to do, जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा था, मेरा कोशिश ये रहना चाहिए कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं उनको अटेम्प्ट करूँगा, और मैक्सिमम क्वेश्चंस को मैं अल्टीमेट पॉइंट पर जाके सॉल्व करके उनका आंसर्स निकालूंगा, तभी मैं उसको टिक करूंगा. अदरवाइज मैथ्स इज़ वेरी ट्रिकी. अगर आपका लास्ट तक आप सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं तो फिर उसको टिक करने का कोई ऑप्शन नहीं बनता, वो आपको सिर्फ नेगेटिव ही देके जाएगा. तो ये मेरा था जो एग्ज़ाम वाला पार्ट था. उसके बाद मेरी तैयारी का क्या रहा CSET में. लाइक नॉट हैविंग अ मैथ्स बैकग्राउंड एंड स्टिल डूइंग गुड इन CSET इज लाइक आई वॉज ऑलवेज अ गुड स्टूडेंट इन इंग्लिश. लाइक मेरी ग्रामर इतनी अच्छी नहीं है, बट दिस रीडिंग पार्ट, मेरी एक रीडिंग की हैबिट थी. मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तब से अभी तक 3-4 साल हो चुके हैं. ऑल दो अटैम्प्ट मैंने 2 दिए हैं. ग्रेजुएशन के बाद मैंने अटैम्प्ट देने शुरू करे थे, बट विद ग्रेजुएशन आई वॉज प्रिपेयरिंग. मेरी आदत थी दैट आई वॉज रीडिंग न्यूज़ पेपर्स इन 2023 एंड 2022 एंड 2023. आई रिमेंबर दैट आई वॉज थ्रू आउट द ईयर आई वॉज रीडिंग न्यूज़ पेपर्स. और उससे क्या होता है कि आपकी एक अच्छी रीडिंग बनती है, और उस रीडिंग को कॉम्प्रीहेंड करना आप अच्छा समझ पाते. तो आई थिंक दैट वॉज समथिंग दैट हेल्प मी इन द एग्जाम.
मेरी ग्रामर कभी अच्छी नहीं है, आई एम नॉट सेइंग ग्रामर, मुझे नहीं पता आर्टिकल ए एंड द एंड प्रेपोजिशन ऑफ इन कहाँ पे क्या कैसे लगता है, इट इज़ इंपॉर्टेंट इन CGL बट नॉट इन UPSC एटलीस्ट। तो वो न्यूज़पेपर की रीडिंग आप कोशिश कर सकते हैं कि आप एक न्यूज़पेपर की रीडिंग बनाना शुरू करें और अच्छे से न्यूज़पेपर को कॉम्प्रिहेंड करना शुरू करें। आप दिन में 2 आर्टिकल पढ़िए, 3 आर्टिकल पढ़िए। आई एम नॉट डिस्कसिंग द करंट अफेयर्स पार्ट, आई एम जस्ट सेइंग कि आप एक रीडिंग करना शुरू करिए फॉर दी कॉम्प्रिहेंशन। तो आप 2-3 आर्टिकल भी अगर दिन के एक पढ़ लेते हैं तो वो आपको एग्ज़ाम में जो रीडिंग वाला पार्ट है उसको आप जल्दी कर पाएंगे, जल्दी ग्रैब कर पाएंगे, जल्दी रीड कर पाएंगे। उससे क्या होगा कि मैथ के लिए आपका टाइम जो है वो बच जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने और कुछ नहीं किया, बट कॉम्प्रिहेंशन के लिए मेरी एक चीज़ थी कि वेन एवर आई वेंट फॉर द एग्जाम लाइक 2024 एंड 2025 ऑल्सो, आई वॉज डूइंग वन थिंग, आई completed the previous year comprehensions from 2013 to 2025 completely। अभी तक जितने आए थे, लाइक इस बार के एग्जाम के लिए 2024 तक के कॉम्प्रिहेंशन और 2024 के एग्जाम के लिए 2023 तक के कॉम्प्रिहेंशन मैंने जो PYQ थे वो क्वेश्चन पेपर लेके साथ में बैठ के आई वुड सेट द टाइमर कि मैं कॉम्प्रिहेंशन कितने टाइम में कंप्लीट कर पा रहा हूँ। एंड इट वॉज फ्लक्चुएटिंग बिटवीन 35-40, 35-40, 35-40, बट आई हैड दिस इन माइंड कि मुझे 30 मिनट में करना है। क्योंकि 30 मिनट में अगर आप वो 27 से 29 क्वेश्चन कर लेते हैं और वो 27 से 29 में से मान लीजिए आपके अगर आप 20 भी सही करके आते हैं तो क्यूमुलेटिवली आपके लगभग 18 क्वेश्चन जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। एंड सीसेट में आपको लगभग 27 से 30 क्वेश्चन जो हैं वो नेट ठीक करने होते हैं। तो अगर आपने 18 क्वेश्चन यहाँ ठीक कर लिए तो अब मेरा क्या बनता था कि 1.5 घंटे में मुझे सिर्फ 10 से 15 क्वेश्चन मैथ के सॉल्व करने हैं, मिनिमम 10 से 15 क्वेश्चन। अगर मैं 18 क्वेश्चन ठीक करके इधर 20 क्वेश्चन ठीक के हो गए और 6 क्वेश्चन मैंने जो गलत किया उनका नेगेटिव करके 18 क्वेश्चन जो मेरे इधर ठीक हो गए हैं। अब उसके बाद अगर मैं मैथ में 10 क्वेश्चन और निकाल लेता हूँ, क्योंकि मैथ में एक चीज़ है, इफ़ यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन योर आंसर इज गोइंग टू बी राइट। तो अगर आप सिर्फ 10 भी उधर कर पाते हो, जो रीजनिंग से भी हो सकता है, मैथ से भी हो सकता है, आप सिर्फ नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस भी अगर ठीक कर सकते हैं, नंबर सिस्टम डजंट कम दैट डिफिकल्ट, वो फिर भी एक अच्छे नोट पे ही आता है। थोड़ा जो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है जिसमें आप आपका एप्टीट्यूड ही देखना चाह रहे होते हैं, स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है उनको कोशिश करिए कि आप उसको अच्छे से समझ पाएँ। तो ये था मेरा जो टाइमिंग वाला पार्ट था कि वो मैंने कैसे फिक्स किया था। और कॉम्प्रिहेंशन मैंने आपको बता दिया कि मैं सिर्फ रीडिंग करता था और पिछले साल के मैंने PYQ लगाए थे। अदरवाइज मैं आपसे ये कहूँगा कोई भी यूट्यूब पर कॉम्प्रिहेंशन अच्छा नहीं पढ़ाता। बहुत जाने माने टीचर हैं कॉम्प्रिहेंशन के और सीसेट के यूट्यूब पर। मैंने जब 2024 वाली उनसे आंसर की मिलाई थी अपनी मैथ की और ये कॉम्प्रिहेंशन वाली सीसेट वाले पेपर की, जब मैंने उनसे आंसर की मिलाई, आई वॉज नॉट इवन क्लियरिंग द सीसेट कम्प्लीटली। मेरे यही 65 to 69 जो है मार्क्स फ्लोट हो रहे थे। बट मुझे ये पता था कि जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है वो ओपिनियन वाला पार्ट है, उसमें टीचर भी गलत हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। सो व्हेन आई सॉ द रिजल्ट्स, लाइक 1 साल बाद रिजल्ट आता है, इस बार के प्रीलिम्स से कुछ टाइम पहले मेरा रिजल्ट आया, तो जब मैंने उसमें मार्क देखा आई वॉज लाइक, GS का मुझे पता था मैं सिलेक्ट नहीं हुआ हूँ तो ऑफकोर्स मेरा GS क्लियर नहीं हुआ है, बट सीसेट वाला देख के जो लगता है कि हाँ ठीक है, एटलीस्ट आई एम नॉट द वन जो सीसेट की वजह से बाहर हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको एक अलग कॉन्फिडेंस देती है कि हाँ ठीक है, GS में यू कैन स्कोर मार्क्स, आप इजीली इंक्रीज कर सकते हैं, बट सीसेट में थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, आपको उसको धीरे धीरे जो है वो आपको विद टाइम डेवलप करना पड़ेगा। देन अदर थिंग्स कमिंग टू मैथ्स, मैथ का ऐसा था कि अलग अलग जो यूट्यूब चैनल्स हैं उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। 3 से 4 साल आई हैव बीन इनटू दिस एग्जाम सर्कल एंड आई वाज नॉट कंटिन्यूअसली डूइंग दिस मैथ्स। बीच में whenever I was getting time, I was doing some topics, like start from the basic reasoning part. बेसिक रीजनिंग से आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप डाइस से स्टार्ट कर सकते हैं, आप क्लॉक से स्टार्ट कर सकते हैं। व्हेन यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चंस, वो आपका एक मैथ का जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा स्पीड अप करेगा। दूसरा एक चीज़, इट विल गिव यू सम कॉन्फिडेंस कि हाँ ठीक है, यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस एंड मे बी यू विल डू इट बेटर, ठीक है। तो एक वो जो डर रहता है जो मैथ्स का कि ये वाला क्वेश्चन नहीं हो सकता, ये वाला क्वेश्चन नहीं हो सकता, वो धीरे धीरे कम होना शुरू करेगा। तो स्टार्ट फ्रॉम द रीजनिंग, डोंट जंप डायरेक्टली ऑन द मैथमेटिक्स पार्ट। डूइंग दीज रीजनिंग क्वेश्चंस, डाइस, क्लॉक, कैलेंडर, उसके बाद आप लोग धीरे धीरे क्या है मैथ की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। मैथ के भी एक पूरा आप लोग एक वो बनाइए कि हाँ ठीक है, जो प्रोसेस पूरा होता है, यू स्टार्ट फ्रॉम द नंबर सिस्टम एंड देन एट द एंड यू गो टुवार्ड्स द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड दोज डिफिकल्ट पार्ट्स। यूट्यूब चैनल्स बहुत सारे हैं, लाइक आई हैव प्रिपेयर्ड कम्प्लीटली फॉर मैथ्स फ्रॉम यूट्यूब ओनली। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम मधुकर सर, और उसमें थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, बट वो स्टार्ट करने के लिए काफ़ी अच्छा, वहाँ से आप रीजनिंग का स्टार्ट करिए। उसके बाद सिविल स्टेप की एक सीरीज़ मैंने देखी थी मैथ्स के लिए, जो EPFO के लिए आई थी, अभी भी वो अवेलेबल है, आप उनके चैनल पर जाएंगे
APFO करके आप लोग सर्च करेंगे तो उसमें मैथ्स की एक प्लेलिस्ट है, मैथ और रीजनिंग की दोनों की वो प्लेलिस्ट है, उसको आप लोग देख सकते हैं। उसको थॉरोली देखने के बाद उन्होंने इन डेप्थ वो चीज़ें कवर करा रखी है और काफ़ी शॉर्ट वीडियोज़ में कवर करा रखी है। उसके बाद उन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल एबल टू लाइक कॉम्प्रिहेंड द थिंग्स इन एग्जाम। अब धीरे धीरे द मैथ्स में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि आपने उसकी प्रैक्टिस कितनी करी है एंड द थिंग कि आप उसको कितना समझ पा रहे हैं। द मोर यू विल ट्राई टू क्रैम द मैथ्स, वो आपसे नहीं होगा। सोचिए समझिए कि चीज़ें क्यों हो रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। लाइक 2 2 ज़ा 4 तो 2 2 इज़ 4 क्यों है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको फिलोसफर बन जाना है, बट अंडरस्टैंड कि 2 2 इज़ 4 तो 2 + 2 4 है ना। ऐसे ही आप जब नंबर सिस्टम में डीप नंबर सिस्टम के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि हाँ ठीक है, ऐसा ऐसा इसलिए हो रहा है, ठीक है। आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ से एक्सपीरियंस करके देखिए, वो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी, ठीक है। और अपने अंदर हमेशा ये कॉन्फिडेंस रखिए कि मैथ उतना डिफिकल्ट है नहीं, क्योंकि आई एम टेलिंग यू आई हैव नेवर बीन अ गुड स्टूडेंट इन मैथ। और आपको मैथ सिर्फ इसलिए पढ़ना है कि आपको सीसेट क्लियर करना है। इफ़ यू आर इवन गेटिंग 67 to 70 मार्क्स, यू आर इन टू द लिस्ट, लाइक एटलीस्ट यू आर क्लियरिंग सीसेट, यू आर इन टू द रेस। इफ़ यू डोंट क्लियर सीसेट देर इज नो मीनिंग इफ यू आर गेटिंग 110 and 120 इन GS। तो क्लियरिंग सीसेट इज़ रियली इंपॉर्टेंट दिस डेज। तो ये चीज़ें थी मधुकर सर की, मैंने आपको बताया कि आप उनसे मैथ्स पढ़ सकते हैं। सिविल स्टेप की मैंने एक सीरीज़ देखी थी। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ कि आप जितने भी अभी तक UPSC ने सिविल सर्विसेज वाला जो एग्ज़ाम करा है उसके सारे PYQs आप बार बार करिए। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर आप PYQs भी अगर आप 5 से 10 बार अगर आप उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, लाइक इन एवरी एग्जाम देयर आर 80 क्वेश्चंस फ्रॉम 80 क्वेश्चंस इन द CSAT एग्जाम, 27 से 29 क्वेश्चंस उसमें जो है वो कॉम्प्रिहेंशन के फ्लोट होते हैं। तो यही 50 से 53 क्वेश्चन के आज 50 to 55 क्वेश्चन जो है मैथ रीजनिंग के आते हैं। दीज 50 to 55 क्वेश्चन ओवर दी 11 to 12 ईयर्स अगर आप इनको पूरा कर लेते हैं, लाइक इट विल बी अराउंड 700 के आसपास वो पूरे क्वेश्चन होंगे। इतने क्वेश्चन आप मैथ रीजनिंग के 10 बार करिए, यू विल बी एबल टू क्लियर द CSAT, आई कैन गारंटी। उसको बार बार जितना आप देखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा एंड यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द CSAT एग्जाम। लाइक CSAT इज़ नॉट द मैथ्स ऑफ SSC और द मैथ्स ऑफ PCS, इट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। वहाँ पे आप अगर आपको मैथ रीजनिंग नहीं भी आती है, यू विल स्टिल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, लेकिन उसके लिए आपको वो PYQs लगाने पड़ेंगे। यू विल हैव टू मेक दिस अंडरस्टैंडिंग, आपको वो जो प्रोसेस अपने दिमाग में पूरा क्रिएट करना पड़ेगा कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो ये CSAT वाला पार्ट था, मैं चाहता था कि एक बार आप लोगों के साथ इसको डिस्कस करूं और लाइक आई वाज नॉट एबल टू गैदर सम कॉन्फिडेंस कि मैं आके आप लोगों के बीच में बोल सकूं। लाइक दिस ईयर ऑल्सो आई डिड नॉट क्लियर द GS पार्ट, बट आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि CSAT आई वुड बी इजीली क्लियरिंग। तो आई होप आई विल मीट यू अगेन। और आपके अगर CSAT को लेके थोड़ा बहुत डाउट्स हैं तो इन पास्ट लाइक 1-2 साल पहले जो भी वो वीडियोज़ आई थी उनमें मैंने कहीं कहीं पर अपना व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल शेयर किया होगा। तो मुझे मैसेज भी आते हैं कभी कभी, टेलीग्राम पे भी जो है टेक्स्ट वगैरह आ जाता है, तो आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी थोड़ा बहुत हेल्प कर सकूँ। और मैं अभी शायद इस चैनल पे भी कुछ चीज़ें जो मैं अच्छा करता हूँ उन चीज़ों को कैसे मैंने उन चीज़ों को किया वो धीरे धीरे आप सबको बताने की कोशिश करूँगा। और ऑफ कोर्स आप लोग वैसे भी अभी मुझसे ज़्यादा सुनना नहीं चाहेंगे क्योंकि आई एम माई सेल्फ, मैंने वो चीज़ें नहीं मैं क्लियर कर पाया हूँ, बट जो चीज़ें मैं अच्छी कर पाया हूँ वो चीज़ें मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड थैंक यू सो मच, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।